Ready? So we are live, I think. All right. Hi guys, I welcome you all to this session today. We have a wonderful panel with us today, and let me quickly introduce them to you. We have Hema ma'am, okay, crowd favorite. आपको पता है, she teaches general awareness. We have Ruindeep ma'am, subject expert for LR as well as Quants. She's here with us. Apart from that, we also have Shreya ma'am, who will be talking to us about Xavier's in depth. Okay, you can say she's verbal ability queen. Okay, so what we'll do is we'll start off with Shreya ma'am's analysis of the overall paper that was conducted today. Ma'am, please run us through the entire duration of this exam and what was the difference between the 2 days in which this exam was spanned, please. Okay, actually, to be very honest, there wasn't really much difference. Even if I compare it with BMS, I mean, the mass media paper that Xavier's had, it really didn't have much difference. But it had some really surprising elements to it. Sometimes we do realize that Xavier's kind of goes back on its own words because they tend to say something, but when they have the exam right at hand, we have completely different things coming around. Starting with the basic pattern, firstly, they said that it's going to be 120 minutes long. They were given 135 minutes to actually be precise. Then they said they were going to be 120 questions. There were only 100 questions. So I think it all went into the favor. I wouldn't say that it was too much of a problem for students, to be honest. But yes, it was different from the kind of paper that we were expecting in terms of the pattern. Apart from, sorry. Please go ahead, ma'am. So I think that's one of the things. And I think apart from that, the kind of question paper that we were expecting, the way we analyzed it, it was pretty much the same. Time management, despite students having 135 minutes, was a problem this time too. I don't know how. I think because they felt that QA was a bit too difficult or confusing, I guess. Right? But apart from that, I would say it's a fairly easy one because the way we've seen people attempt and the way people performing, they've done it pretty well. Correct. Shreya ma'am, my follow-up question was exactly the same that you just answered right now. So, see, because Xavier shared the information with us कि वहाँ पे आपके पास you'll have number of questions will be 120 and they provided 100 questions and the time duration like you mentioned वो increase कर दी 120 से 135 कर दी. So wasn't that an advantage? It should have been. I mean, it should have been an advantage. But what I do realize is that I think people started taking time as a complacent factor. They thought that they have enough time and they maybe fell in love with a question and tried to do it. Something that we even in our strategy session said that you shouldn't maybe abstain yourself from doing something like that. But I think flow mein I think beh gaye or whatever it was. So that was one thing. I think another thing that I also realized was that they said that there's going to be a subjective question. That's what they informed the students via mail. Right. There was no such thing. There were only objective questions. Right. I think that was a blessing in disguise. Absolutely. Anything that they went back on was actually a blessing in disguise, to be honest. True. Yeah. Hi Akash sir. Welcome. I welcome you all. Guys, let me introduce Akash sir as well. As you know, he's subject matter expert for quantitative ability. Quant के expert है. Akash sir, please run us through the entire 2 days of Xavier's. What is your overall analysis of the paper? Just a generic overview. सर जैसा भी बच्चों से बात करके जो भी इंफॉर्मेशन आई कैन गैदर उसके अकॉर्डिंग आई कैन से कि हाँ मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस में भी बहुत टफ थे. बच्चों को ऐसा लगा कि उनको टफ लगे हैं कुछ क्वेश्चंस. और सो आउट ऑफ दोस 20 आई कैन से कि हाँ 15-16 वाज लाइक वो लोग सॉल्व कर सकते थे. 3-4 क्वेश्चंस वर टफ. डीआई के लिए अब यहाँ पे एक चीज़ और है, बच्चों से ये जो मालूम चल रहा है कि मे बी शायद उनके सेट्स अलग अलग है. मे बी सबको अलग अलग सेट मिला है. कुछ बच्चों को डीआई इजी लगा है, कुछ बच्चों को डीआई थोड़ा सा टफ लगा है. तो एक आध बच्चों से बात करके मालूम चल रहा है कि कुछ बच्चों के सेट में लाइन ग्राफ जो आए थे वो बहुत टफ थे. कुछ बच्चों के पाई चार्ट बहुत टफ थे. तो मतलब ओवरऑल उन्होंने बैलेंस करके रखा है. अगर आप डीआई की सेक्शन की बात करो तो अगर मान लो चार क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन के सेट थे, तो एक डीआई अगर टफ है सबका तो 3 डीआई आसान था. सेम गोज विद मैथ्स. अगर मैथ्स में भी उनके पास जो भी टॉपिक्स आए थे, एक तो सिर्फ बेसिक मैथ्स आया था,
उसमें कोई भी हायर मैथ्स कुछ भी नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया. So only basic maths. Basic maths में जो टॉपिक डोमिनेंट थे वो था परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियोज, then they were like averages, प्रॉफिट एंड लॉस. सो ये 4-5 टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये 5-6 टॉपिक थे जो डोमिनेंट है. उसमें अब वो इसमें भी सेट बाय सेट डिफर किया. किसी सेट में बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन समझ में नहीं आए या तो बहुत टफ लगे. किसी सेट में बच्चों को परसेंट, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे. तो मतलब ओवरऑल यहाँ पर भी उन्होंने बैलेंस किया कि अगर किसी को मान लो कोई एक आउट ऑफ दोस 20 कुछ क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो बाकी उनको बैलेंस आउट करके बाकी इजी दे दिया जाए. राइट. तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट ऑन द मॉडरेट साइड पे मैं ज्यादा बोलूंगा. वैसा पेपर था बीएमएस का मैथ्स के कंसर्न में. Right, sir. Thank you so much, sir. Ruindi ma'am, your opening remarks for the LR section specifically, how was it throughout the 2 days? I would say it was easy, sir, because बच्चों से obviously बात जब होती है तो एक चीज जो जैसे आकाश सर ने बताई, they were saying हर सेट में क्वेश्चंस डिफरेंट थे. तो हमें गेस करने को नहीं मिल रहा था कि अच्छा प्रीवियस सेक्शन में अगर किसी ने बता दिया. But still the questions were very easy. 20 questions में से at the max there were 2 or 3 questions जो सिर्फ tricky थे. I won't even say they were lengthy. They were just tricky. तो मतलब you had to just stop. Question को 2 बारी read करना है. For example, a Silox question. So 2 बारी read करा, you could answer that. जितने बच्चों से मेरी बात हुई है उनका attempt 16 से 18 तक correct रहा है. So उससे कम किसी का नहीं हुआ है. And Another thing, बहुत सारे सेट में जो क्वेश्चंस थे अपने प्रथम के मटेरियल में से उठाए गए हैं. सो दैट वाज, बच्चे बोल रहे थे मैम ये क्वेश्चंस डायरेक्टली हमने सॉल्व करे थे कुछ 2-3 दिन पहले. सो वी न्यू द आंसर्स. तो एलआर एक्चुअली उनकी हेल्प ही करके गया है. इस सेक्शन में काफी हेल्प हुई है उनकी. एट द मैक्स 2 क्वेश्चंस वर ऑन द मॉडरेट लेवल, आई वुड से, नॉट इवन डिफिकल्ट, क्योंकि वो सिर्फ ट्रिकी थे, दे वर नॉट इवन लेंथी. तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं था एलआर इजी था, गिवन कि आपको टाइम भी ज्यादा मिला है. और हाँ, क्वेश्चंस अलग अलग आ रहे थे. एक जगह पे अगर आपको सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिले तो दूसरी जगह पे आपको अरेंजमेंट्स देखने को मिला अच्छे से, बट लेवल बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था. इफ यू हैड गिवन इनफ अमाउंट ऑफ टाइम तो वो काफी अच्छे से सॉल्व हो रहे थे. आई वुड से इजी लेवल ऑफ एलआर, 20 क्वेश्चंस एंड वेरी इजी. वेरी वेल पुट फॉरवर्ड मैम. मैम ने जैसा कहा, तो गाइस आई कैन वाउच फॉर दिस फॉर ऑल द सेक्शंस. अगर आपने अपना प्रथम का मटेरियल अच्छे से पढ़ा होगा, अभी मैं हिमा मैम के पास भी आऊंगा, वो भी आपको सेम चीज बताने वाली है. तो जो भी आपने अगर क्लासेस लगातार अटेंड करी हैं, इफ यू फॉलोड रिलीजियसली, फॉलो ऑल द क्लास इंस्ट्रक्शंस, आई एम श्योर, चाहे वो वर्बल एबिलिटी हो, मैम श्रेया मैम, आकाश सर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यस रुइंद मैम ने बोला एलआर, और जीए में भी आपको सभी में आपको एक बहुत ही जबरदस्त आपको एक बोनस मिला ही होगा. आई एम 100% श्योर. नाउ हिमा मैम, प्लीज रन अस थ्रू. Yes, sir. So पहले तो सर मैं बात करना चाहूंगी ओवरऑल पेपर की, because if we talk about the strategy session that we had yesterday, उसमें हमने कहा था that the level will be moderate, and exactly the level of the exam was easy to moderate, not much difficult. And as we analyze the BMM exam also, and I think Shreya ma'am and Akash sir and Rohini ma'am कल मेरे साथ थे, ये लोग भी एग्री करेंगे, काफी हद तक the paper was exactly on the same lines जैसा हमारा BMM था, उसी लाइन पे हमारा बीएमएस भी सेट हुआ है. कल भी देयर वर क्वेश्चन, अगर मैं अपने सेक्शन की बात करूं, जनरल अवेयरनेस, कल भी देयर वर क्वेश्चंस ऑन लोगो आइडेंटिफिकेशन, आज भी देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन लोगो आइडेंटिफिकेशन. देन एंड इफ आई टॉक अबाउट द मेजर एरिया, जैसे अगर मैं आज के पेपर की बात करूं, देयर वर डिफरेंट सेट्स होने के बाद भी all the sets were mainly dominated by current affairs and business awareness and not the static GK part. Static GK के जो questions आए भी हैं वो भी सर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है या हमारा बिजनेस अवेयरनेस से रिलेट कर पा रहे हैं. सो बिकॉज इट वाज अ मैनेजमेंट एग्जाम, वी कैन से दैट इट वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द सेक्शन करंट अफेयर्स एंड बिजनेस अवेयरनेस. एंड यस, देयर वर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आल्सो. For example, logo identification में there were question on the Audi, right? There were question on the Olympic rings. There were question on the Central Bank of India. So we can say that they have covered all the sectors, right, in the logo identification in different sets. एक set में 2 question थे and उसमें बच्चा बहुत easily अपना नंबर कैच कर सकता था. And वहीं पे अगर मैं
बात करूं आपका नेक्स्ट पार्ट की, स्टैटिक में हमने कल भी बताया था कि कल भी साइंस के 1 या 2 क्वेश्चन देखे गए, सेम आज के पेपर में भी हुआ, देयर वर क्वेश्चन ऑन साइंस एंड इनडायरेक्ट थे सर। सिंपली अगर हम देखें आपका करंट अफेयर्स में जो चीज हाईलाइटेड थी, इलेक्ट्रिकल बैटरी, लिथियम बैटरीज वर इन न्यूज दिस टाइम, सो दे आस्क्ड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरीज, दैट मींस दे वर मेनली फोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके की नॉलेज भी अगर बच्चे की खींचना चाह रहे हैं तो वो उसी पॉइंट पे खींच रहे हैं कि अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, अलग से स्टैटिक जीके पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। एंड यस, बिजनेस ओरिएंटेड है तो सर उस पर बहुत ज्यादा फोकस था। शाहरुख खान की कंपनी का प्रोडक्शन हाउस का नाम पूछा हुआ था, राइट? देयर वर क्वेश्चन ऑन द ह्यूमनॉइड रोबोट आल्सो, बिकॉज इस साल इंडिया में काफी ह्यूमनॉइड रोबोट आपके लॉन्च हुए, लाइक रश्मि, पालकी एक्सेट्रा। सो वो सीधा गए सर, सोफिया मोस्ट फेमस ह्यूमनॉइड रोबोट, द फर्स्ट रोबोट हु गॉट सिटीजनशिप, राइट? उनकी कंट्री पे पूछा। तो आई मस्ट से very well structured GA section in this exam, very well structured, amazing questions, and I think वही questions थे जो actual में पूछना चाहिए था according to the exam pattern। and yes, जिस कोर्स के लिए वो प्रिपेयर करवा रहे हैं, they are checking कि क्या बच्चे का उस चीज में actual में इंटरेस्ट है या नहीं है। so yes, very well structured section। ग्रेट मैम। मैम एक और मैं फॉलो अप क्वेश्चन आप ही से पूछता हूँ सबसे पहले। तो मैम, बिकॉज देयर आर डिफरेंट सेट्स, तो जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आकाश सर ने बोला होता भी है तो भी डिफिकल्टी लेवल सेम रखना इज पॉसिबल, बट क्या ये सेम पॉसिबल है मैम हमारे सब्जेक्ट में? अगर मैं जीके की बात करूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई मस्ट से कि यहाँ पे दे ट्राई टू मैनेज द पैरिटी। रीजन बीइंग, अगर उन्होंने एक सेट में 2 लोगों आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे हैं, दूसरे सेट में भी सेम किया है उन्होंने। अगर यहाँ पे इन्होंने 3-4 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे हैं, दूसरे में भी बैलेंस करने की कोशिश की, बट यस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थे स्टैटिक, बट बच्चे को लगेगा कि वो स्टैटिक नहीं है, वो करंट अफेयर्स है। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट आवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बच्चा नॉर्मली सोचता है दैट दिस इज करंट अफेयर्स, बट अगर आपका ये क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन, और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, तो वी कैन से दैट कि ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक पार्ट है, नॉट द करंट अफेयर्स। इसीलिए बच्चे नॉर्मली कहते हैं मैम स्टैटिक तो कुछ आया ही नहीं, बट दिस इज स्टैटिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो यस, दे ट्राई टू मैनेज द बैलेंस बिटवीन ऑल द सेट्स। एंड आई मस्ट से सर 1 या 2 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। आपका हर सेट में आइडियल अटेम्प्ट मैं इजीली कह सकती हूँ सर, एंड वेरी प्राउडली कह सकती हूँ कि अगर बच्चे ने प्रथम का मटेरियल पढ़ा है, अगर अभिमन्यु सर के लीक्ड क्वेश्चन सुने हैं, तो वो आराम से सर 15 से 16 तो यूं निकाल के ले जाएगा। ट्रू मैम, ट्रू। मैम अगर कट ऑफ पे मैं बाद में आऊंगा, श्रेया मैम, आई विल आस्क द कट ऑफ लेटर, तो पर वहां आने से पहले मैं आपसे जस्ट ये जानना चाहूंगा मैम कि अगर हम बात करें वर्बल एबिलिटी की डिफिकल्टी की, तो बच्चों ने बोला कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया तो इट वाज फेयरली इजी वन, तो हाउ वुड यू रेट द सेशन? अगर मैं बोलूं सेक्शन वाइज, अगर मैं बोलूं आपको कि मतलब बिकॉज यहाँ पे आपने जैसे आपने बताया था कि एक बुफे टाइप का था, मतलब हर तरह के क्वेश्चंस थे, इट हैड एवरीथिंग इन इट, राइट? वर्बल एबिलिटी सेक्शन में तो क्या एक आइडियल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को जस्ट जिसमें वर्बल एबिलिटी सब्जेक्ट है, तो कहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अब आने वाले एग्जाम्स में भी, और इसमें भी कौन से एग्जाम में अगर आपने फोकस किया हो तो फायदा हो जाता मैम? I think the paper, like I said, section was very easy. It was very similar to the one we had in BMS. And again, that's something that I have said earlier as well. I've said that it's easy not because they made it so. It was easy because people have studied it, right? So they had studied, they've done the vocab booster, they've done quite a bit of practice, and that made it easy. Right, so जब उन्होंने पूछने के क्वेश्चन स्टार्ट किए, so they started with vocab, and most of the questions, most of the words that we've done, whether in the mass media section or the one that we had today and the yesterday's exam, they were all from the vocab booster. Whether it was a survey or intriguing, or there was one question that was about candid, there was pervious. So these were words that they've asked. Right? If you've done the vocab booster, it's all good to go for you. Provided you've revised, right? Apart from that, I think they have also asked you questions on passive and active voice, which I said, like I've already said, it was a buffet. It was a mixed bag, right? So it had a flavor of pretty much everything that we possibly could, right? So grammar, they didn't want to ask you too much lengthy, too much difficult grammar, so they asked you active and passive, very basic things.
Apart from that, when they started with RC, last time I was a little nervous about RC because there were 10 questions, 10 questions, that means 10 RCs and one question following every RC, which was difficult. This time around, I think again, like I said, that was just like overcompensation for that much time and no QA. इस बार वो ऐसा नहीं करने वाले थे, clearly, right? And there was only one RC. They had 5 questions in it, but some people said it was difficult, it was lengthy, it was a little confusing. I think it's just because whenever you see a lengthy article, wo apne dimag mein you kind of start programming that it's difficult and it's not something you might want to do right now. Right, and that fear sets in, and I think that makes half the problem. And you're actually losing a battle if you're doing that, right? So that was one thing that I wanted everybody to do. I think that's something that in my strategy sessions also I said that please read your questions before you start reading the passage. If you've done that, I think it should not be that much of a problem. So as opposed to all the other sections, I think what people have been telling me was moderate. I won't call it easy, but it was moderate mostly because you've done it, so you find it easy. But they hadn't said it in a manner that everybody could do it. You know? And there were a lot of collective nouns as well, something that I think people tend to maybe not like it because again, it's like a bahut sara ratta marna padta hai and all of that. So this time around, they asked very easy ones. So elephant ka collective pucha, they asked for a camel and a sheep, right? The very basic ones. They had, I think they had analogies as well, which were very interesting to be honest. Not very, very heavy on vocabulary, but very heavy on logic. Which actually helped, because even if you've not maybe studied too much vocabulary, you would probably be able to do it if you apply some brains, right? So all you needed to do was you use your noodles and that's it. You would sail through, right? So it wasn't that difficult. It was moderate, but easy for those who studied. You're right, ma'am. Thank you so much, ma'am. Wonderful insights. Akash sir, there are a few students who are complaining कि सर ऐसा है कि इस बार क्वेश्चन कुछ गलत भी आ गए हैं सेंट जेवियर में, और उस एक गलत क्वेश्चन ने हमारा टाइम ले लिया पूरा और हमारा जो 100 मिनट के अंदर हम सब कुछ कर लेते वो 1 मिनट हमारे ईगो पे आ गया और हम फिर उसको तो करने ही वाले ही थे, और क्योंकि आंसर नहीं निकल रहा था तो फिर कर नहीं पाए। तो सर थोड़ा सा उस पे प्रकाश डालिए आप प्लीज। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा डिफर करूंगा, क्योंकि एक तो अभी तक क्लियर नहीं है कि वो एक्चुअल क्वेश्चन गलत है या बच्चों से सॉल्व नहीं हो रहा इसलिए वो गलत बोल रहे हैं। राइट। तो ये दोनों चीजें हैं, या तो एक्चुअल क्वेश्चन ही गलत है या तो बच्चों से नहीं सॉल्व हुआ तो बच्चों ने मान लिया कि ये क्वेश्चन ही गलत है। तो एक बार पहले वो क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा क्लियर हो जाए, कौन से सेट में आया ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे वो गलत आ जाए, गलत हुआ तब थोड़ा सा मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। बट अगर मान लो ऐसा कुछ गलत हो गया है तो आप ये मान के चलो कि आपको उसके मार्क्स मिलेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। तो अगर एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको मतलब फ्री के नंबर है, उतना तो वो सेट वाले बच्चों को उतना तो फायदा है, बट ऐसा चांसेस बहुत कम है कि क्वेश्चन गलत हो। एक बार थोड़ा सा पेपर रिलीज हो जाए या कुछ क्वेश्चन एक्चुअली मालूम चले तो मालूम भी हो कि हाँ वो एक्चुअली में गलत है या बच्चों के हिसाब वाला गलत है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा सर आपने, मतलब एकदम वेल पेड सर। फॉरवर्ड डिफेंस बिना एकदम बिल्कुल बॉल एकदम मिडल ऑफ द बैट, क्या बात है। हेमा मैम, अब आता है वो क्वेश्चन जो सब बच्चों को इंतजार था इतनी देर से। पहले मैं जीए से स्टार्ट करता हूँ। मैम ये वाला जो सेक्शन है जीए की, जब हम बात करते हैं तो जैसा बच्चों ने ग्रुप पे भी लिखा, हमें सबको, आपको भी मुझे भी, हम सबको फीडबैक दिया, उन्होंने बोला 18 आ रहा है, 16 आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ, जीके बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। आपका क्या एनालिसिस है मैम, व्हाट डू यू थिंक विल बी अ सेफ स्कोर यहाँ पे? हाँ सर, मैं बात करूंगी, थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगी सर मैं इसके बारे में। So if we talk about the particular section, my section, right, or rather I would say our GA section, right? So in general awareness, if we particularly talk about overview की अगर हम बात करें, सारे sections जितने भी आपके sets थे, अगर उन सबको देखें sir, I can simply say that आपका mainly this section was focused on current affairs. Then second mainly focused section was your business awareness, and then there was some focus on the static GK part. So जैसा मैंने बोला, अगर बच्चा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर रहा है, so he'll feel कि जस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आपका स्टैटिक में आया था, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर्स एंड एवरीथिंग, रिसेंटली अगर चेंज नहीं हुआ है, दैट विल बी इन योर स्टैटिक जीके। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग एक ब्रीफ सेग्रीगेशन करना चाहूँ हर सेट के अकॉर्डिंग कि किसने कितना क्वेश्चन आया था, तो फॉर अ सेफर साइड आई कैन से दैट देयर वर 8 क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स,
there were 6 questions from business awareness. Reason being, कई business awareness के question ऐसे थे जिसको we can put it under current affairs also. Otherwise आपका BA and CA बिल्कुल equal दिख रहा था. कई बच्चे तो ये भी बोल रहे थे मैम it was BA dominated. तो जब मैंने questions देखे बच्चों ने जो बताया मैम ऐसा question था, इस तरह का question था, तो we can say that there were mainly current affairs questions, then आपका business awareness, and then if we include international organization and one of your science question, eco question and all, so there were 6 static GK question if we include the international organization in the static GK. Otherwise ये number हमारा current affairs का 11 हो जाएगा, static GK का आपका कम आ जाएगा 3 पे. So this is the segregation according to me on the basis of the questions I get from the students के ma'am. These were the questions asked mainly. Key points पता थे वो उन्होंने share किया हमारे साथ. Now when we look at the type of questions, आपके questions बहुत easy थे. मैं कुछ questions बताना चाहूंगी जैसे सब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका अगर बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है, मैं जस्ट वो बोल रही हूँ सर जिसने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो भी सर एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन तो वो निकाल लेगा. एंड मैं ये उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया. फेनी साइक्लोन के बारे में एवरीवन नोज. अगर आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हो, आप बहुत इजीली उसका आंसर दे दोगे. सेम सर अगर हम बात करें HRD मिनिस्टर पे क्वेश्चन था, हु इज द करंट HRD मिनिस्टर इन वन सेट. Very simple. There was tagline of Priya Gold. So एक क्वेश्चन था ऑन दी टैगलाइन स्लोगन. मतलब हम इतना ज्यादा डिटेल में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं एंड ये तो वही बात हो गई सर, खोदा पहाड़ निकला चूहा. हमने इतना ज्यादा पंच लाइन्स एंड स्लोगन इनको पढ़ाए एंड उन्होंने पूछा किसका, प्रिया गोल्ड का. So there was a question on this. Then there were question कि अगर हम बात करें एशियान की इन कंट्रीज में से कौन मेंबर नहीं है, बिम्स्टेक की कौन नहीं है. ऐसे ही सर अभी रिसेंटली ओपेक में से 2 कंट्रीज ने बैकआउट किया इन 2019. So there was a question on this कि किसने रिसेंटली बैकआउट किया है या किसने लीव किया है उसको. इस तरह के क्वेश्चंस भी थे. Then there was one question in just one set. बाकी किसी सेट में कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आया. एक सेट में क्वेश्चन था when did India became republic and adopted the constitution. So we all know कि कब हुआ था. ये रिपब्लिक वर्ड आ गया तो बच्चे को आंसर पता है, राइट सर. सो अगर क्वेश्चन थे भी तो काफी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन थे. देन एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमने मैम पढ़ाया नहीं मैम. बाकी तो आपने जो भी बोला मैम, आई एम श्योर स्टूडेंट्स ने सब कुछ पढ़ रखा है, ये सब हमने डिस्कस किया है क्लासेस में. बट एक क्वेश्चन ऐसा था मैम, वो क्वेश्चन था मैम कि कैरम बोर्ड में कितनी क्वीन. यस सर, मैं आई वाज कमिंग टू दैट क्वेश्चन ओनली. कैरम बोर्ड में कितनी क्वीन होती है. बट सर ये भी पता ही होगा बच्चे को. एग्जैक्टली. सर ऐसी चीजें भी अगर हम क्लास में पढ़ाने लगे तो सर अपना सिलेबस कितना जाएगा, वी ऑल नो, right? These are the sir common, हम बोल सकते हैं these are the questions based on the common sense and the basic knowledge that we have, right? Okay, कैरम किसके घर में नहीं खेला जाता सर. Okay, so then there was a question on the tagline of State Bank of India. ये तो सर एक एक बच्चे को पता है क्योंकि हमने क्लासेस में, करंट अफेयर्स की क्लास में, बिजनेस अवेयरनेस में इतनी बार रिपीट किया है कि ये बच्चे को आराम से पता था. Then there were 2 questions on logo identification. सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था on the floating nuclear power plant. ये क्वेश्चन सर मैं पिछले 3 साल से एग्जाम्स में देख रही हूँ बिकॉज ये पिछले 3 साल से न्यूज में है. कहाँ लॉन्च किया जाएगा, कहाँ होगा, कहाँ लॉन्च किया गया, नाउ टेस्टिंग कहाँ हो रही है. दैट मीन्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 3 साल से किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है. Then there were question on the production house of Shahrukh Khan. Then your question जो आपने बोला, how many queens are there in the game of carom board, right? Then there was science question, essential component in the electrical batteries. Sir एक question जो हमने इतनी बार किया, जो हमारा 2022 Commonwealth Games है, उस पे भी क्वेश्चन था, उसकी होस्टिंग सिटी पे क्वेश्चन आया था, उसके वेन्यू पे क्वेश्चन था. सो आई मस्ट से सर जितने भी क्वेश्चन थे, आपका सोफिया पे देयर वाज अ क्वेश्चन, ओलंपिक रिंग्स पे देयर वाज अ क्वेश्चन, राइट सर. सो वी कैन से दैट सर अगर बच्चे ने क्लासेस भी अटेंड किया है, आई एम नॉट सेइंग कि उसने खुद से स्टडी मटेरियल पढ़ा हो, अगर क्लासेस भी अटेंड किए सर उसने प्रथम टेस्ट प्रेप की, तो वो बहुत आराम से सर 14 से 15 क्वेश्चन निकाल सकता है. एंड विद अ गुड प्रिपरेशंस, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आइडियल अटेम्प्ट इस पेपर का आपका होना चाहिए था 15 to 16 क्वेश्चंस. 15 to 16 question. That too sir मैं यहाँ पे एक रिमार्क देना चाहूंगी, without doing any kind of unethnic stuff, without doing any kind of cheating, आपका 15 to 16 questions का अटेम्प्ट होना चाहिए था. because we got to heard about it कि बहुत बच्चों ने
काफी मतलब नॉट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, बिकॉज प्रथम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है ऐसी चीजों को, हम कंप्लीटली डिनाई करते हैं। अपने स्टूडेंट्स को भी हमने बोला डोंट indulge yourself in these kind of activities, but yes sir, we all know that in the market, आपको सर ज्यादा पता है बिकॉज आपकी तरफ से ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, एंड मैं आपसे ही चाहूंगी सर आप भी इसके बारे में बाद में डिस्कस करें। सो यस, मेरी तरफ से यही है सर, आइडियल अटेम्प्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इन दिस एग्जाम इज 15 to 16 क्वेश्चंस। राइट, आइडियल अटेम्प्ट्स गाइस आपको पता चल गया है। 15 to 16 अगर आपने अटेम्प्ट्स किए हैं, यू आर गुड टू गो। इतने नंबर आ गए, आप समझ लो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा जीके की तरफ से। बट सर यहाँ पे एक और रिमार्क है, एज वी ऑल नो दैट द नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लेस, एंड इनका क्लास 12 का स्कोर जो है सर, इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में वी हैव द वेटेज ऑफ क्लास 12 को अलोंग विद द एंट्रेंस एग्जाम। तो सिर्फ एंट्रेंस अच्छा करने से नहीं होगा, आपका 12 का स्कोर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स राइट, जिन्होंने शेयर किया मैम वी गॉट 85 आउट ऑफ 100, मैम आई गॉट, बिकॉज सर एंड में वो आपका जो स्कोर शीट है वो शेयर हो जाता है वहां पे। Some students were saying, ma'am, we scored 89 out of 100, but still, sir, they are not sure because their class 12 score is not that good. So we can say that सिर्फ आपका एंट्रेंस का स्कोर अच्छा होना ही सफिशिएंट नहीं है, आपका क्लास 12 स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, as we have a lot more competition here because the number of seats are very less. Yes, over to you. Very well put forward, ma'am. Thank you so much for the detailed info on this जनरल अवेयरनेस सेक्शन। आई एम श्योर कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है कितने आइडियल अटेम्प्ट होने चाहिए थे, राइट? अगर परसेंटेज कम है तो अपना स्कोर ज्यादा होना चाहिए, गोज विदाउट सेइंग। श्रेया मैम ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था पिछले सेशन में, आई एम श्योर आप सबने वो सेशन अटेंड किया ही था, राइट? कमिंग बैक टू रोहिंदीप मैम, मैम नाउ प्लीज रन अस थ्रू एलआर और एलआर में भी आइडियल क्या स्कोर, आइडियल आप जो भी आपका एनालिसिस रहा है आज के पेपर में, क्या आइडियल अटेम्प्ट क्या होते हैं? visual, yeah, 20 questions थे टोटल, और गिवन दैट कि हमारे पास टाइम काफी था, ठीक है, जैसे श्रेया मैम ने बोला भी कि वो थोड़ा सा जो प्रेशर रहता है ट्रिकीनेस वाले क्वेश्चन में कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट यहाँ पे ये था कि अच्छा मेरे पास टाइम है, आई कैन गिव दिस क्वेश्चन अ बिट ऑफ टाइम एंड एक्चुअली सॉल्व इट। तो एलआर में मोस्टली बच्चों ने एक भी क्वेश्चन में आई थिंक तुक्का तो नहीं मारा। जितने बच्चों से मेरी बात हुई थी लाइक मैम 20 के 20 क्वेश्चंस वी वेंट थ्रू देम, या फिर 2-3 बच्चों ने मुझे बोला कि मैम ये एक क्वेश्चन नहीं आता था तो मैंने इस पे एक गेस कर दिया कि मेरा क्या आंसर होना चाहिए। अदर देन दैट उन्होंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। तो अगर मैं देखूं उस अटेम्प्ट के बाद भी मोस्टली बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम 17 करेक्ट है, 18 करेक्ट है, जैसे हेमा मैम ने बताया कि शेयर हो जाता है स्कोर, तो 17-18 करेक्ट है उन बच्चों के, and that too after they have completed. So I would say वही जो trickiness की बात मैं कर रही थी स्टार्टिंग में कि वो 2 या 3 क्वेश्चंस में थी, तो टाइम का प्रॉब्लम नहीं था, क्वेश्चंस काफी इजी थे, 2 क्वेश्चंस अगर ट्रिकी भी थे तो जिन्होंने बहुत तैयारी करी बच्चों ने, जिन्होंने अच्छे से मटेरियल को सॉल्व करा है, जिन्होंने मॉक्स अटेम्प्ट किया, नॉट इवन फॉर द Xaviers, आई वुड से अदर्स मॉक कोई अदर यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के जो मॉक्स हैं वो भी उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं फ्रॉम प्रथम। I would say they could see the questions. आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे मॉक्स में गिवन होते हैं। आपके कोडिंग के क्वेश्चन, सीरीज, ओके हाँ, सीरीज के कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे जैसे आप पूछ रहे थे आकाश सर को कि सर ये क्वेश्चन गलत है या नहीं, ऐसे कुछ केसेस मेरे सामने भी आए हैं। सो इफ आई टेक दैट इनटू अकाउंट एज वेल, आई वुड से ऑन जैसे अनएथिकल, किसी को चीटिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आई वुड से 16 to 17 अटेम्प्ट्स। ये भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट उन बच्चों को दे रही हूँ कि वो ट्रिकी वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, एंड दे जस्ट गेस्ड इट और उसकी वजह से वो गलत हो गया। आई वुड से 16 to 17। जी सर। वन मोर क्वेश्चन मैम, डू यू एग्री ऑन दिस कि एलआर इज, मतलब अगर मैं कहूँ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑल दीज विल बी एलआर, तो डू यू एग्री ऑन दिस? सर मैं एक चीज बताऊंगी, जब आई वाज अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज गिविंग एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, मेरे मोस्टली जो पीयर्स होते हैं ना, जैसे साथ में जो कंपटीशन होते हैं, लाइक अरे लॉजिकल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रथम के स्टूडेंट्स के साथ ये नहीं है। हमें उन्हें रोकना पड़ता है कि प्लीज स्टॉप, क्वांट्स और करंट अफेयर्स और बीए पे ध्यान दो, प्लीज इसको छोड़ दो, ये अभी तुम्हें आ चुका है। क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको मजा आ रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, डजंट मीन कि आप यही क्वेश्चन करते रहोगे। तो फेवरेट है सर, यस, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि फेवरेट है बच्चों का। और ऊपर से आपके फेवरेट सब्जेक्ट में जब इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चंस आपने देखे हुए हैं,
वो आते हैं, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो मैं अगर मेजॉरिटी की बात करूं, जिन्होंने थोड़ा सा भी प्रिपेयर करा होगा, जिन्होंने ध्यान दिया होगा, करंट अफेयर्स, लॉजिकल, सब पे बराबर ध्यान दिया होगा, उनके लिए भी ये सेक्शन काफी इजी था। तो आई एम सेइंग 16 to 17, बट मोस्टली बच्चों के क्वेश्चंस आराम से 17 एक्यूरेट है। तो आई कैन से मेजॉरिटी के लिए 16 to 17 वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, अगर करेक्ट है आपके आंसर्स। So I would stick to that. Thank you ma'am, thank you so much. Guys, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट्स में भी, मैं लगातार पढ़ रहा हूँ आपकी कमेंट्स. Thank you so much for being so participative. First of all, I thank you all for joining in again. ठीक है, जो भी हमारे late joinees हैं, I thank you all again for joining us. Don't worry, we'll ask all the questions that you're pouring in. मैं सब पढ़ रहा हूँ. ठीक है, सबके सबका हम आंसर करेंगे ही करेंगे definitely. Make sure you like the channel. ठीक है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्रथम के चैनल को, टू सी ऑल दीज अपकमिंग वीडियोज एज वेल. हम बहुत ही जबरदस्त सीरीज आपके लिए लेके आने वाले हैं इन द न्यू फ्यूचर. ऑलराइट, तो गाइस, जो भी 70s में मार्क्स ला रहे हैं, 80s में मार्क्स ला रहे हैं, 90s में ला रहे हैं, सबकी को कंफ्यूजन है कि हमारे बोर्ड्स में क्या आइडियल मार्क्स होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू, अगर हमारे 90 आ गए यहाँ पे और 85 आए हुए हैं बोर्ड्स में, आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए, ये आप पूछ रहे हो. गाइस, आप यहाँ पे आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, डोंट फील टू डिसहार्टन्ड अगर आपके जैसे आपका स्कोर कम है और यहाँ पे कोई लिख रहा है कि मेरा स्कोर इतना है. अगर कोई लिख रहा है 90 है, मेरा 91 है, आपको लग रहा है यार तेरा सीटें ही है और मेरा नंबर तो आएगा नहीं अब इसमें. गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ऑल दो स्टूडेंट्स आर आल्सो अपीयरिंग इन मेनी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स आल्सो, राइट. तो वो आपके लिए काफी सारी जो हो सकता है वो जो ला रहा है वो कहीं और चला जाए बाद में, ठीक है, तो वो सीट आपके लिए वेकेंट हो जाए. तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए यू हैव टू मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट रहो. ठीक है, बिल्कुल ही घबराना नहीं है कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड स्टे टिल द एंड सो दैट इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड लाइंस क्या है कट ऑफ की, और पिछले साल क्या कट ऑफ था, इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, कीपिंग ऑल द फैक्टर्स इन माइंड. एंड वील आल्सो टॉक अबाउट सर्टेन फैक्टर्स जो हेमा मैम और रोहित मैम ने भी पॉइंट आउट किए हैं, राइट. श्रेया मैम, प्लीज रन अस थ्रू वर्बल एबिलिटी. व्हाट इज prediction, I'd say? Firstly, let's talk about the ideal attempt. How should we go about talking about the ideal attempt for the section? Like I said, RC was a little difficult. I saw that a lot of people who attempted it couldn't score entirely. I mean, no full marks were given to the RCs per se, right? So at least 2 questions were the ones जो हमने देखा कि हाँ +-1-2 हो रहा RC. Right, so they have segregated the section in such a way that they're talking about 15 questions separately and the RC questions separately. So out of 5, I would say if you've scored around 3 to 4 out of 5 for RC, it's a good score, right? Because apparently this was a tricky one. It was lengthy. You were also nervous. So I think that was one. But about the other part, about the part that was fairly easy, right? That I could have told you to at least aim say about 12 to 13 out of 15. Right. So on an average, I would say 15 out of 20 could be something that you can look at. Right. Because it was easy, and the only tricky parts, Abhimanyu sir, was, to be honest, the ones that were about spellings. Right. Because we have a really messed up spelling system, to be honest, because we are all in the autocorrect zone right now. So हमें spellings आधे time रहती भी नहीं है यार. And हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ English type करते हैं on the phone. Right, we don't write anymore. That's the problem, and that's something I keep telling my students also. Remove your autocorrects. But that was one of the things that I saw. Siege, needs, necessity, right? Comedy. These were all double spelling words, right? And they were actually trying to test you कि आपको कहाँ पे पता है कहाँ पे double आ रहा है, कहाँ पे e पहले आ रहा है, I बाद में आ रहा है. Those kinds of things. Not very technical, but वो grounds जहाँ पे आप mistakes कर सकते हैं. Right. Apart from that, they did not ask you anything जो कि problematic. They asked you a question on claustrophobia and metaphor. I mean, there can be nothing better than this, right? So it shouldn't be anything less than about 16 out of 20, considering the whole idea into picture. Amazing, guys. 16 से श्रेया मैम, और श्रेया मैम ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है. चलो, आकाश सर, कमिंग टू यू. सर, आप बताइए क्या आपका एनालिसिस है सर आज के पेपर का. अगर मैं आपसे पूछूं आइडियल अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए थे, क्या कट ऑफ रह सकता है, प्लीज सर. मैथ सेक्शन के लिए मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, मतलब पॉइंट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, लाइक 24 पॉइंट समथिंग
तो वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट कैलकुलेशन है, तो उतना तो हम अप्रॉक्सीमेट भी नहीं कर सकते, उस टाइप के कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एंड कुछ क्वेश्चन जो ट्रिकी थे, जो मैंने पहले बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे, तो ये सब फैक्टर को देते हुए आप मैथ्स में मेरे अकॉर्डिंग इट शुड बी 15 नंबर आउट ऑफ दोस 20 क्वेश्चन। अगर कोई 20 कर रहा है तो 20 में से आउट ऑफ 15 शुड बी वेरी गुड अटेम्प्ट। उतना में आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, बिकॉज एक तो यहाँ पे स्पीड का भी था, प्लस आप थोड़ा सा एक वो वैल्यूज देख के भी बच्चे बहुत ज्यादा उसको छोड़ना, मतलब होता है ना, आते हुए भी मन नहीं कर रहा था उसको करने का, क्योंकि इतना ज्यादा आप पॉइंट में आप क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करोगे। अब तो बहुत सारा कुछ लिखना है, बहुत दिमाग लगाना है, तो ये बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन इस वजह से स्किप कर रहे थे मैथ्स में। यूजुअली मैथ्स में वो जब पढ़ रहे थे, वन लाइनर देख रहे थे, उसमें भी वो ऐसे कुछ क्वेश्चन आए स्किप कर रहे थे। तो 15 शुड बी आइडियल अटेम्प्ट फॉर मैथ्स। डीआई के लिए, क्योंकि एक डीआई उनका टफ था, ये सभी सेट में ऐसा देखा गया कि एक डीआई तो टफ था ही था। तो आउट ऑफ दोस 4 क्वेश्चन, अगर किसी ने 3 डीआई के क्वेश्चन, 3 डीआई का सेट सॉल्व किया है, तो दैट शुड बी वेरी गुड। इट मींस आउट ऑफ दोस 20, अगर आपने 14-15 के अराउंड आप हैं, आपने 14-15 क्वेश्चंस किया है, तो आई थिंक यू आर डूइंग गुड, आपने अच्छा किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस, आपको एक बार इंडिविजुअल सेक्शन वाइज आपको एक आइडिया लग गया है कि कितना आइडियल अटेम्प्ट्स क्या होते, अगर आपको जेवियर क्रैक करना है, if you already have a good percentage in your 12th standard, right? Now ma'am, we'll start with Shreya ma'am. Shreya ma'am, अगर हम देखें तो lots of students complained कि सर ऐसा हो रहा है, कि ऐसा सुनने में आया हमें कि there are certain places जहाँ पे हम हमारे friends पढ़ रहे हैं और वहाँ पे टीचर्स ने उनको मदद करी है, उनकी सहायता करी है, उनकी हेल्प करी है to ensure that they score really well. तो without taking any names, we'll just हम सिर्फ ये बात करेंगे, हम सिर्फ ये जानेंगे कि how do you think this can affect their performance, या their, जैसे अगर वो ला रहा है, वो बता रहा है कि हमारे तो इतने मार्क्स आ गए, हमारे तो फुल आ गए because teachers were attempting the paper. तो do you really think it will be बहुत मैसिव डिफरेंस क्रिएट करेगा, या फिर कोई एडवांटेज मिल जाएगी उन स्टूडेंट्स को? Just I'll add one more thing कि यहाँ पे we also have to keep in mind कि ये proctored test था, right ma'am? Right. So, सबसे पहले तो it is very, very unfortunate to hear something coming from that big players in the market. I mean, you can't expect something like that to happen, right? Secondly, teachers indulging into situations like these is even more sad, because I don't know, it's very unfair on the part of the other students who really worked very hard. Considering the times that we were in right now, we had so much tackle, so many things on our plate right now, right? We had boards, we had the lockdown for 4 months. It's already messing with our brains and our minds. And then you do all of that, it just, I don't know, it's just very, very wrong. Having said that, also, of course, it's not ethical, it's not morally correct. It's completely against what an education system should stand for, what teachers are there for, like you're gurus technically. And if you're doing something like that, the kind of example you're setting for the generations to come is absolutely abysmal. So I can't condemn in more strong words than this. It's absolutely unacceptable, not required, shouldn't have been happening. If it does happen, it's absolutely unfortunate. And I think the teachers should know better, because they, I'm sure, have been students some time back. They've sat for exams like these. I know it's a dog-eat-dog world, but you technically can't do that. I mean, it's just a saying. You can't go around eating each other's opportunities. If you're not better than them, don't do it. Right? You have so many other opportunities to grasp. We condemn reservations, we do all of that kind of thing, and then ultimately what you are doing is also a part of a very, very, very corrupt system. Right? So I don't think that should have happened. And teachers helping is, I don't know, another level of sadness, I think, for us. Also because we realize we've been putting so much effort throughout these 4 months. We've been putting so much effort, giving our 100%, and then the students are taking that to a completely different level altogether with their hard work. So it's as saddening for us, but it's even more disheartening for the students who've attempted these exams, right? And whatever they've scored is very honest. Whatever our students have scored is very honest. We've been talking about that even in our strategy sessions. Do not get into any of these things.
Secondly, coming to your point, Abhimanyu sir, you said that it's proctored, right? And something we had told earlier as well, symbiosis, I mean, they disqualified quite a lot of people. We can expect something like that from in Xavier's as well. I mean, it should be, in all fairness, should be one of the actions that should be taken. Because undoubtedly so, if this is something that's happening, I'm sure कि इससे हमारी cutoff पे बहुत difference आ जाएगा. Because if the teachers are doing it, I'm sure the teachers are 100% on point with their answers. How can they go wrong? Right? अगर उसमें भी हम plus minus बिठा के भी चलते हैं, तब भी cutoff बहुत unexpectedly high जाएगी, which is something which is very unfair. Right? So I think Xavier should definitely take a stand on this. Just as Symbiosis has put an exemplary situation in front of us, उन्होंने disqualify किया, वो step लिया. Xavier should definitely do that too. But Abhimanyu sir, in fact, I was a little curious about this. ये तो मेरा चलो एक बहुत ही emotional level पे I've spoken, but what are your legal concerns with this? Do you think there's anything in terms of that we can tackle? Ma'am, legally speaking, मैं सिर्फ वही लीगल पॉइंट्स वो मैं शेयर करूंगा बच्चों के साथ जो कि बच्चों ने पढ़ रखा होगा अभी तक. तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर इट्स अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ देयर आर्टिकल 14, राइट, जो इन्होंने पढ़ रखा है, और भी प्लेथोरा ऑफ लॉज दैट आर बीइंग वायलेटेड, ऐसा नहीं करना चाहिए. बट आर्टिकल 14 एवरीवन इज सबको पता है, राइट टू इक्वालिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट. तो ये ब्लेटेंट अब्यूज है, तो ऑब्वियसली देयर कैन बी अ लीगल एक्शन जो कि बच्चे ले सकते हैं. बट मैं ये नहीं कहूंगा उनको, ये नहीं, मैं प्रोत्साहन नहीं दूंगा उसको कि यार लीगल आप करो, बिकॉज वी आर ऑल्सो जस्ट अज्यूमिंग कि बिकॉज द टीचर्स हैव गिवन तो वो अच्छे नंबर लाए हैं. we are just assuming this, right? So let's see, let's wait for the results and let's wait for the cutoffs. But yes, our voice should definitely be raising. हमें हमारी वॉइस तो रेज करनी ही चाहिए एंड मेक श्योर करना चाहिए कि Xavier listens to this and makes sure कि जो भी वो proctored मोड में जो टेस्ट ले रहे हैं, तो मतलब obviously they should also figure out यार क्या सही चीज है, क्या गलत चीज है, and take a call based on that, right? Hema, would you like to add something on this? As you were the first person to point this out, I'm sure you have something to say. So it's just that, जैसा कि श्रेया ने भी बोला, आपने भी बोला, श्रेया तो काफी इमोशनल हो गई थी इस बारे में बात करते हुए. ऑब्वियस है सर, 4 महीने से we are doing hard work with our kids, with our students, and they are also putting their hard work, right sir? And 4 महीने से जब ये इतनी hard work कर रहे हैं, I think these 13 seats of Xavier's वो deserving candidate को मिलनी चाहिए, ना कि उन over smart kids को जो कि अपना cheating करके इन सबको पीछे छोड़ रहा है. तो I think especially to those students जिन्होंने cheat किया and those institutions, जैसा आपने बोला, without naming anyone, right? Those institutions, those teachers जिन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया सर, I think Xavier's की तरफ से कुछ एक्शन होना चाहिए, जैसा आपने भी बोला, राइट. एंड सर इट्स वेरी ऑब्वियस कि बच्चों के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थिंग है ये कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना ज्यादा जब वो अपना एफर्ट डाल रहे, पूरा 100% दे रहे हैं 4 महीने से विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, 6 आवर्स क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिसमें वो बेचारे स्टार्टिंग में रो भी गए थे, मैम व्हाट इज दिस हैपनिंग विद अस. बट यस, नाउ दे कैन अंडरस्टैंड कि जो इन्होंने क्लासेस अटेंड की, स्टार्टिंग में जो उन्होंने पेन लिया, वो इनको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दिलवा रहा है. बट द पॉइंट इज, अगर बिना मेहनत करके कोई बच्चा आके सिर्फ किसी अनएथनिक चीज की वजह से ये सीट्स ले जाता है, तो सर इससे बड़ी अनफेयर चीज आई डोंट थिंक कोई हो सकती है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअल में डिजर्विंग है. यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना है ना कि सीट बहुत कम है. यस, तो वही मेन वही अगर ये सीट ज्यादा होता तो अगर ये अनफेयर एक्टिविटीज भी हैं तो एटलीस्ट एक लेवल पे मैनेजेबल था. यस सर. तो ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है ये. तो मतलब तो वही आप देखो ना आकाश सर, आपने जैसे बोला कि कम सीट्स हैं, वही अगर वो 13 बच्चे, मानो कोई अगर चीट कर रहा है, एक साथ बैठ के वो 13 का ग्रुप अगर दे रहा है, वही 13 के 13 बच्चे जो अनएथनिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, अगर वही सीट ले जाए, तो सर Xavier's का सबसे बड़ा नुकसान है. मैं तो यही कहूंगी, इन बच्चों से ज्यादा नुकसान Xavier's का है. मैम अनएथिकल, बिल्कुल सही कहा आपने कि अनएथिकल आपने एक्टिविटी अगर कोई भी करी है तो फिर यू विल डेफिनेटली आप अपना ड्रीम कॉलेज जो है वहां जाकर भी आप यू विल नॉट फील एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आएगा आपको. आप वहां जाओगे, अगर चीटिंग करके जाओगे, यू विल फील कि यू डोंट डिजर्व दिस प्लेस, बिकॉज एट द फर्स्ट जब आए हो वहां पे, तो आप अपने हक से वो एकदम कहते हैं ना, एकदम एग्जाम को क्रैक करके नहीं आए हो. आप कैसे आए हो? आप अनफेयर मींस यूज करके. तो डेफिनेटली गाइस, डोंट वरी अबाउट अ थिंग.
सिम्बाइसिस ने भी यही किया है, बिकॉज इट वाज अ प्रॉक्टर्ड टेस्ट, उनका वीडियो कैमरा चल रहा था, बहुत लोगों को मेल आया है ये कि उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया है उनको अनफेयर मींस यूज करने के लिए। तो डोंट, आप अपना दिल छोटा मत करो, ठीक है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, जो लोग चीटिंग कर रही हैं उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आप सब बिल्कुल आपके साथ हैं, ठीक है, इस चीज में बिल्कुल जो आपके लिए करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड है सत्यमेव जयते, राइट। तो हम बिल्कुल, हम सब आपके साथ देख सकते हो, आप सारे पैनल में हम सब यही कह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स नाउ मैम, लेट्स मूव ऑन टू द ओवरऑल कट ऑफ। काफी देर से काफी बच्चे हैं जो थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं कि सर प्लीज पहले वो बता दो, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं अपन। तो रुइंदीप मैम, may I start with you please? सर, सबकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि 80 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि डेफिनेटली 82 83 इतना तो आराम से अटेम्प्ट हो सकता था, ठीक है। तो 80 प्लस आई वुड से, क्योंकि लास्ट ईयर से मैं ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा था, ठीक है। उन्होंने बोला कि क्वेश्चन ज्यादा देंगे, फिर भी कम दिए, और लेवल भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्यूए का सेक्शन अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, या जैसे सर ने बताया कि डीआई का एक क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, उस सबको नोटिस करते हुए आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो वो भी इनटू अकाउंट आपको रखना है। आई वुड से 81 80 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। अगर आपने 80 अटेम्प्ट कर लिया है, उसके ऊपर एवरीथिंग इज गुड। तो वेल सेड मैम, you are let's ask Shreya ma'am as well. मैम, आप 12th के मार्क्स ऐड करते हुए, कंसीडर करते हुए थोड़ा सा हमें ओवरऑल स्कोर बताइएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, क्योंकि lots of kids here who are joining us for the first time, they were not here when you were discussing the last time round. तो एक बार आप, if you could just quickly run us through that. And before you move forward, I'll just take 10 more seconds, ma'am. There are a few questions in the YouTube chat जो पूछ रहे हैं कि सर आप किस चीज की कोचिंग कराते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, we are undergraduate courses जितने भी हैं आपके undergraduate, barring आपके IITs और आपके NEET, we are test prep leaders। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, प्रथम की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको वीडियो को तो लाइक करना ही है, ये तो बोलने की बात नहीं है ठीक है। तो ये करना ही करना है आपने, और जाके देखो, एक्सप्लोर, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू रीच आउट टू अस, वील टेक केयर। यस, कमिंग बैक टू द कट ऑफ्स मैम, प्लीज। Okay, so last year what we saw was that the cutoff was fairly low, lower than what we would expect this year. The 76 is hardly anything else. I mean, considering कि हमारा पेपर बहुत आसान था, I mean, if I compare it with the previous one at least. Plus we've had these kinds of sources जहाँ से हम answers ढूंढ पा रहे थे. Right, so everybody's been scoring pretty high. So I would firstly say that the composition of the entire marks, the final merit list that comes out, is a combination of 60% of the entrance and 40% of your 12th marks. So it's not just about how you performed here in the entrance, it's also equally important that you performed well in your board exams. Otherwise, that will tend to probably pull down your entire score altogether. So both of these things taken together, I would say that the cutoff this time should be somewhere above 85. Ma'am, do you agree? क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा paper they've developed and curated a paper where people have been able to perform well. And I mean, अपने ही contacts में I've seen couple of, in fact, and couple of is a very understatement, I would say, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा perform किया. And I've been asking them about their 12th result as well. And it's not that they've scored any less than 12. Right, so we have if you're smart both ways, right? You have a good score in 12th and you have a good score here as well, and that would make it even more difficult, and the cutoff should go higher than what it was last time, and much higher in fact would be the correct. Okay, Shreya ma'am, I want to ask you something. You are saying 85. That means you are talking about after including the entrance and the board score both, yes, right? Yes. So that means we can say that, as Rohin ma'am also said, in the entrance exam, anything above 80, right? Anything above 80, or rather, we can say that 82, 83, right? In between, it can be a good score, right? Along with a very good score in the 12th board. So, in agar hum isko aggregate karke dekhe, then you are saying anything around 85 must be a good score to get into Xavier's. Yes. Okay, perfectly fine. Yes. Right. Akash sir? Sir, anything above 80.
मैं 85 तो नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा हो जा रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। भी आप देखो, मतलब लास्ट ईयर भी पेपर इसी लेवल का था, देन आल्सो देयर द कट ऑफ वाज ओनली 76 रिटन का। तो जो हम लोग सोचते हैं ऐसा वो कट ऑफ आता नहीं है फिर एक्चुअल में। वो बहुत जो मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा डिफर कर जाता है। हम लोग बोल तो देते हैं अच्छा 85 आ जाना चाहिए था, बट वो होता नहीं। क्योंकि मास लेवल पर अगर आप जाके देखो, ऑन एन एवरेज बच्चों का बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब 70 से ऊपर देखोगे कम बच्चे हैं, 80 से ऊपर और कम हो जाते हैं। तो और प्लस 12th का भी मार्क्स का इफेक्ट आता है। तो 80 प्लस 80 टू 82 83 मेरे अकॉर्डिंग दिस शुड बी द कट ऑफ। सर अगर ऐसा कट ऑफ आया ना तो हमारे ही बच्चे सारी 13 सीट्स ले जाएंगे फिर। पक्की बात है सर, 100%। सही बात है। Goes without saying. एक क्वेश्चन है मैम यहाँ पे, स्टूडेंट has scored 91 in their boards, 87 in entrance, तो उनका जो कंपोजिट स्कोर है अगर उनको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? आपने एक बार समझा दिया है, तो एक बार एक डेमो अगर आप दिखा सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा मैम। राइट, नॉर्मल कोई भी आप स्कोर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू स्कोर सिर्फ एग्जांपल 95, इजी वन, ठीक है। 95 अगर आपने किया है स्कोर 12th में, तो ऑल यू हैव टू डू इज 9.5 into 4, right? And whatever you get would be your average score from that 40%. Akash sir, am I right? I don't have any idea about how to calculate the composite score in Xavier's. Okay, Maybe. so it's 40% of your score in 12, right? So that's how it is. And then if you've scored about 88 here, so it's 8.8 into 6, right? And जो भी आपका उन दोनों में आ जाता है वो आपका मिला के would be the score for the merit list here at Xavier. मैम कुछ और भी फैक्टर्स आते हैं इसमें, सिर्फ हम लोग सिर्फ 40% वैसे नहीं निकालते, उसमें और भी कुछ हिडन फैक्टर्स है, कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे अगर अभिमन्यु सर आप एग्री करोगे, डकवर्थ लुइस का नाम सुना है ना, वो कैसे कैलकुलेट होता है किसी को नहीं मालूम है, वो कैलकुलेट होता है। तो बस यही चीज इधर भी है, जेवियर्स के साथ भी है। करेक्ट सर। वो हम लोग एज्यूम करते हैं कि मे बी वो परसेंटेज का 40% 0.4 ऐसा करके निकाल रहे होंगे, वो अंदर क्या हो रहा है वो नहीं मालूम है। फिर भी जो ओवरऑल सर इजी कैलकुलेशन के लिए इजी कैलकुलेशन तो वही है जो श्रेया मैम ने बोला कि आप जो भी आपका परसेंटेज है आप उसका 40% कैलकुलेट करो, वो आपका कंपोजिट स्कोर इधर से है, रिटेन का 60% यानी 0.6 से मल्टीप्लाई करो, उनको फिर ऐड अप करो, सम अप करो, आपका कंपोजिट स्कोर आएगा। तो आई एम श्योर वेदांश, गगन, आप सबका बेटा, आप सबको, बत्रा जी आपको भी, आई एम श्योर आप सभी को आपका क्लियरली आंसर मिल चुका होगा। एवरीवन हु हैज बीन आस्किंग कि सर मेरा इतना स्कोर है, क्या मेरा हो जाएगा, राइट? तो पिछली बार का अगर हम देखें कट ऑफ तो कितना था आपको पता है? उससे डेफिनेटली सारे जो टीचर्स हैं, सब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, सभी आपको ये बोल रहे हैं कि उससे डेफिनेटली यू शुड एक्सपेक्ट मोर फॉर ऑब्वियस रीजंस, not because of the cheating thing, but because of your exam being online and boards में percentage इस बार definitely you can say पिछली बार जितने 95% जितने बच्चे लेकर आए थे उससे there is डबल से भी ज्यादा बच्चे इस बार 95% प्लस लेकर आए हैं। तो कंपटीशन भी हमारा उतना है, तो बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना है। we have lots of exams to focus on। हेमा मैम, अगर कोई अच्छा नंबर नहीं लाया, कोई 70 ही लाया है, 75 ही लाया और वो देख रहा है हमको, तो उसको क्या होना चाहिए? दुखी हो जाना चाहिए क्या? अभी नहीं सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। एक ही तो दरवाजा बंद हुआ है, अभी काफी दरवाजे खुलने बाकी हैं। सो वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो, लाइक वी हैव DU JAT, right? DU JAT is a great option, I can say, in the management exam. In fact, I would rather say that it is one of the most famous course in management in India, right? And that too from the college like Sahi Sukhdev, right? To get the tag of Sahi Sukhdev with their name, I think sir अभी ये option उनके पास बाकी है। So अगर इसमें नहीं हुआ सर, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी और भी options बाकी हैं। They can register themselves for the DU JAT, right? अभी अगर हम बात करें तो DU JAT के लिए सर अभी आप वो लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। दे हैव सफिशिएंट टाइम। अभी भी सर 1 महीना बाकी है, 1 महीना के रादर आई वुड से कि 40 दिन बाकी हैं। 40 दिन में तो सर दुनिया पलट देते हैं लोग, तो 40 दिन में प्रिपरेशन क्या है? यस बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। एलेट भी बाकी है मैम, जो एलेट क्लैट अभी काफी कुछ बाकी है सर। मैं पर्टिकुलरली मैनेज I was just talking about from the management perspective as we are doing the analysis of a management exam. बिल्कुल तो बिल्कुल सही है। जामिया की भी मैम आज लास्ट डेट है जी सर, आप आज फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों। तो यू हैव ग्रेट ऑप्शन, अदर ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस है। प्रथम की हेल्पलाइन पे आप रीच आउट कीजिए, पूछिए उनसे, फोन खटकाओ, पूछो कि क्या है सर, कब है,
और कौन सा मेरा दरवाजा एक बंद हो गया, दूसरे दरवाजे कौन से हैं बताइए, बता देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच श्रेया मैम, रूइनदीप मैम, आकाश, हेमा मैम, थैंक यू सो मच फॉर being part of this wonderful panel. I enjoyed this session thoroughly. काफी informative था. I'm sure the students enjoyed it as well. 80 plus guys, last आपको सबको पता चल गया 80 plus है तो you are in the reckoning. आप reckoning में हो, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार 80 plus है मेरे तो पता नहीं होगा 80 plus है, एक थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, वो आप सोच रखो, बाकी रब रखा, right? Sir, just one question. Gagan Jain is asking a question again and again. I think हमें उनका आंसर कर देना चाहिए. बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है that 89 composite score है. Is there any chance बच्चे with 89? Gagan, I think you should stop posting one comment again and again. You have already posted it 12 times, right? So बच्चे, yes, there are a lot of chances, right? High chances are there with 89 score that you'll get बच्चे a seat in Xavier's. अगर आप आराम से सो जाइए जाके आपका हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आप जेवियर्स जा रहे हो। मुझे मैं भी एग्री करता हूँ सर आपके साथ। 89 अगर कंपोजिट स्कोर है, जा रहे हो, बाय बाय, आप जा रहे हो मुंबई। बहुत बढ़िया, वानखेड़े में बैठ के मजे से आईपीएल देखना अगले साल, कोविड जब मुक्त हो जाएगा भारत। ठीक है, चलो, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच अगेन all the lovely panelists. Thank you so much guys for watching our live session. I'm sure you enjoyed it. Please जाने से पहले thumbs up देके जाइएगा हमें, और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ही करना है आपने, ठीक है। Thank you so much guys. Sir also. Yes. Yeah, yes ma'am. Thank you guys. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye. Bye Bye everyone.